Hello students. Yesterday we have completed in the chapter of velocity of waves, velocity of transverse wave along a stretched string, and hence we have calculated the frequency of the stretch frequency of the vibration of a stretched string. Today we will discuss about the velocity of longitudinal waves in a fluid. When we say fluid, it means gas or liquid. The common name of gas and liquid is fluid. Longitudinal waves means sound wave is a longitudinal wave. A wave is called a longitudinal wave when the particles of the medium vibrates parallel to the direction of propagation of the wave. Is it right? For the propagation of longitudinal wave, a medium is required. Longitudinal wave cannot move through vacuum. For example, sound wave is a longitudinal wave. And when a longitudinal progressive wave means the wave which propagates in the forward direction is called progressive wave. So when a longitudinal progressive wave moves through a medium, then it produces rarefaction, condensation and rarefaction. In the region of condensation, the particles of the medium come closer to each other. And in the region of rarefaction, the particles of the medium move away from each other. The distance between two consecutive rarefaction or two consecutive condensation gives the value of wavelength of the wave, that is lambda. But in case of transverse wave, we get crest and trough, and the distance a complete cycle, the distance traveled in complete cycle consists of, you know it well, the distance traveled in a complete cycle is the wavelength of wave. That is another thing. We are not concerned with transverse wave today. We are only concerned with longitudinal wave. But for convenient, I have explained within 1 or 2 minutes for transverse wave. We have studied a lot of physics about transverse wave. So when the particles of the medium come closer to each other, in case of condensation, density increases, and in case of rarefaction, density decreases. And when a sound wave, which is longitudinal progressive, moves through a medium, it creates a pressure on the medium. Say the medium is air or a gas. For example, very simple है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से साउंड वेव निकल रहा है. तो ये एक रफ वे में लेमन की तरह हम कहें तो जैसे हम हाथ को यहाँ रखें तो क्या हो रहा है, हाथ पर एक साउंड वेव का एक प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन यह प्रेशर इतना नहीं है कि बोलने से मेरा हाथ ऐसे हो जा रहा है, नहीं ना हो रहा है, बहुत कम प्रेशर. तो जब प्रेशर पड़ेगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कम क्लोजर टू ईच अदर, इट क्रिएट्स कंडेंसेशन. और उसके बाद फिर क्या होगा, आफ्टर कंडेंसेशन द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, it gives rarefaction, and in this way wave travels in the medium. So when a sound wave, or you can say longitudinal progressive waves, moves through a medium, air or any gas, then what will be its velocity, that is to be determined in our today's class. So our topic is velocity of longitudinal waves in
a fluid in a pipe. So when a longitudinal progressive wave, that is sound wave, moves in a fluid, liquid or gas, the particles of the medium vibrate along the direction of propagation, just I said. Hence, pressure varies from particle to particle inside the gas. Or you can say medium. Or you can say air. Consider a long tube. This is a long tube. Let cross-sectional area of the tube is a small area. Just like a tube. And when I speak or any sound created here, it moves, travels through this pipe. So, A is the cross-sectional area, means this area. This area is, let us consider, a small a. The wave, that is sound wave, is moving in the positive direction of x-axis. This is the sound wave propagation, direction of sound wave propagation. So velocity of sound is along the positive direction of x-axis. Let a small v is the velocity of the sound wave. अब A and B दो पॉइंट लिया इस पाइप में या कहें मीडियम में. A and B be the two cross sections of the tube, and the medium is supposed to move in a negative direction of x-axis. माने एयर का मीडियम का जो मोशन होगा या गैस का, उसका मूवमेंट क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, दिस डायरेक्शन. This is the velocity of sound ka direction. So it is in negative x direction and sound is in positive x direction. It is mentioned here. So A and B be the two cross sections of the tube, and the medium is supposed to move in negative direction. Then position of condensation and rarefaction in the tube will remain fixed with respect to ground. तो जब साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा तो रेयरफैक्शन और कंडेंसेशन का जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि दो लगातार कंडेंसेशन और दो लगातार रेयरफैक्शन का बीच का दूरी ही वेवलेंथ ऑफ साउंड होता है, साउंड वेव होता है. लेट A corresponds to normal density. Let this corresponds to normal density and B corresponds to the region of condensation. This is the region of condensation and this is the region of normal density. Let pressure, density and velocity of medium at A is P, rho and V respectively, and pressure, density and velocity of medium at B is P1, rho 1, V1 respectively. अब मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग एट ए, यहां से जो मीडियम इंटर कर रहा है, मीडियम इज आवर एयर और गैस, तो मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग एट ए पर सेकेंड, मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग एट ए पर सेकेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए, भी एंड रो. अब सवाल उठता है कि तीनों को गुना करने से मास पर सेकेंड कैसे हो गया. तो इसको हम लोग यूनिट से चेक करेंगे. एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और रो का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब. तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी पर सेकेंड. केजी पर से केजी इज द यूनिट ऑफ मास and second is the unit of time. So product of area, velocity and density is nothing but it is the mass entering at A per second. Mass entering at A per second. इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको यूनिट से चेक कर लिए, और समझने के लिए है कि तीनों को गुना कर देने से मास ऑफ मीडियम एंटरिंग एट ए पर सेकेंड निकल गया. सिमिलरली मास ऑफ द मीडियम लिविंग एट बी, जो बी से निकलेगा पर सेकेंड,
वह क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट हो गया, एरिया वेलोसिटी ρ1 जो है गुना कर दिए। अब क्या है कि एज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ना बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना यहां से इंटर करेगा वही ना यहां से लीव करेगा, तो मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि एज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कांस्टेंट, द masses of the medium crossing the section A and B per second are equal, और मास entering और leaving per second को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, this is equal to this and this is equal to this, A and A cancel out, तो इससे क्या हो गया, V rho is equal to V1 ρ1, let it be equation number 1. Since B is a region of condensation, region on condensation, its density will be higher than normal density. Condensation में particles come closer to each other, तो normal density से इसका density ज्यादा होगा, यह तो but natural है, higher than normal density rho at A. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये तो नेचुरल है, बट नेचुरल। अब इक्वेशन 1 मेरा क्या था, ρ इंटू भी इक्वल टू ρ1 इंटू V1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम थोड़ा डिस्कशन करें, तो चूंकि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ, तो इक्वेशन 1 तभी सेटिस्फाई होगा जब V1 इज लेस देन V, अर्थात डेंसिटी अगर अधिक है तो ρ इंटू भी इक्वल टू ρ1 इंटू V1 तभी सेटिस्फाई रह सकता है, इफ एंड ओनली इफ V1 इज लेस देन V। तो ये कंक्लूजन निकला, जहां डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगा, ये कंक्लूजन एक निकल रहा है इससे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देयरफॉर the momentum of medium entering per second at A, it is equal to m into V, m is mass entering per second और V is velocity at A, तो momentum of medium entering per second at A mv and momentum of medium entering per second at B mv1, m is same for A and B, therefore change in momentum per second, हम बोले ना बोले पढ़ने से ही हो जाएगा, mv माइनस mv1, और द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्यों हो रहा है, इज ड्यू टू प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर क्या है मेरा, P1 माइनस P, तो यह जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है इसका रीजन क्या है, फिजिकल रीजन क्या है, इट्स रीजन इज डिफरेंस इन प्रेशर, और प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स क्या हो गया, एरिया इंटू प्रेशर, देयरफॉर फोर्स अप्लाइड कैपिटल F मान लिया, एरिया है A और चेंज इन प्रेशर P1 माइनस P, तो एरिया इंटू प्रेशर क्या हो गया, A इंटू P1 माइनस P, हियर इट इज फोर्स अप्लाइड। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is equal to applied force। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का यही ना है जी, क्लास 9th 10th का चीज है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, वैल्यू बैठा दो, देयरफॉर P1 into P1 minus P into A, this is the applied force is equal to change in momentum mv minus mv1, और अब इसको सॉल्व किया, P1 minus P into A, mv कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 minus v1 by v, let it be equation number 2। अब since mass entering at A is a v rho and v1 by v equal to rho by ρ1, ये कहां से आया, हिंट दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 2 का रूट क्या हो गया, P1 माइनस P इंटू A, M के जगह पुट कर दो A V रो,
m के जगह पुट कर दो m भी रो, इक्वेशन 2 में m के जगह m भी रो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a v स्क्वायर रो, m बराबर a भी रो है ना, तो m पुट करो तो क्या हो गया, a v स्क्वायर रो 1 माइनस v1 बाई v, 1 सॉरी इट इज इक्वल टू v स्क्वायर रो, अब ये हो गया रो 1 माइनस रो बाई रो 1 माइनस रो बाई रो 1, इज इट राइट? Put these values in equation 2, we get p1 minus p into a equal to a v square रो 1 minus रो by रो 1। इसके बाद हम इधर आएंगे, a और a cancel out, therefore excess pressure, what is p1 minus p? p1 is the pressure at b, p is the pressure at a, so p1 minus p is the excess pressure, very clear। इस p1 minus p को हम कहेंगे excess pressure, प्रेशर P1 माइनस P इज इक्वल टू V स्क्वायर रो 1 माइनस रो बाई रो 1, सेम थिंग, सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर रो 1 माइनस रो बाई रो 1। सो V स्क्वायर रो बराबर क्या हो गया, इधर उधर कर दिए खाली, V स्क्वायर रो हो गया P1 माइनस P डिवाइडेड बाई रो 1 माइनस रो बाई रो 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। Let capital E is equal to coefficient of elasticity of the medium, or you can say modulus of elasticity of the medium। यह जनरल फिजिक्स का इलास्टिसिटी टॉप चैप्टर का है, और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 4 तरह का होता है, वो सब यहां जिक्र नहीं करना है, लेकिन इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। Young's modulus of elasticity कैपिटल Y, bulk modulus of elasticity कैपिटल K, rigidity modulus of elasticity eta, और चौथा है Poisson's ratio रो। तो Poisson's ratio जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, उस सबका यूज नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जनरल है इलास्टिसिटी का, फिर इसका 4 होता है, वो डिटेल में इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। खैर, तो E बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्योंकि हुक्स लॉ यही ना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अर्थात E का फॉर्मूला क्या हुआ, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और फोर्स बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो हम इसको लिख सकते हैं डिक्रीज इन प्रेशर, जो वैल्यू हम निकाले हो ना, लिखेंगे अपने हिसाब से, जो यहाँ के लिए लागू होगा, डिक्रीज इन प्रेशर बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन शेप बाई ओरिजिनल शेप, ये सब इलास्टिसिटी का बात है। अब ऐसा है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी बराबर हम कह सकते हैं कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, और वी कैन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो। वी कैन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो। तो हम v माइनस v1 बाई v का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v ये जनरल है, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो, तो हम इसको कह सकते हैं v इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट बाई रो। तो v माइनस v1 क्या हो जाएगा, इसको दिखाने का जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए खाली कर रहे हैं। v बराबर हो गया k बाई रो, और ये हो जाएगा k बाई रो 1। दिस इज k बाई रो माइनस k बाई v1 है, तो रो 1, एंड दिस इज इक्वल टू k बाई रो। सो दिस इज इक्वल टू k कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा रो 1
1, so this is becomes rho 1 minus rho divided by k by rho. This k cancel, so v minus v1 upon v इक्वल टू क्या हो गया, रो 1 माइनस रो बाय रो 1 इंटू रो कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो बाय रो 1. तो v माइनस v1 बाई v इक्वल टू रो 1 माइनस रो बाई रो 1 कैसे आया, ये वाला, उसके लिए हम इतना चीज यहां पर कैलकुलेट किए हैं, दिस वन. हालांकि इसको मेंशन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि यहां हमने डायरेक्ट लिखा है, ये कैसे आया उसका प्रूफ हम कर दिए यहां. इसको एग्जामिनेशन में नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा. ये अंडरस्टूड है, बहुत से लड़के समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनके लिए हमने यहां पर कैलकुलेट करके भी बता दिया. खैर ये एक्स्ट्रा है. तो E बराबर क्या हो गया, डिक्रीज इन प्रेशर को रख दिया V1 माइनस V, और स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. दिस बिकम्स दिस वन. अब इसका वैल्यू इतना निकाले हैं, प्रूफ किए हैं, यहां पुट कर दिए. तो इक्वेशन 3 बिकम्स, देख लो इक्वेशन 3 क्या है मेरा, पहले लिखा हुआ है. तो इक्वेशन 3 का रूप हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर रो, राइट हैंड साइड में इतना था, इसको लिख दिया इक्वल टू E, और v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, E बाई रो. वेरी सिंपल, v इक्वल टू रूट अंडर E बाई रो. This equation 4 is the required expression for the velocity of longitudinal wave when it travels through a fluid, कहो या मीडियम कहो या एयर कहो या कोई लिक्विड, उसके लिए ही फॉर्मूला होगा. ये जनरल फॉर्मूला है. तो कंक्लूजन क्या है मेरा, thus velocity of longitudinal waves in a medium, air or gas, depends upon the elasticity and density of the मीडियम. जब हम एयर के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, एयर या किसी गैस के लिए, तो वह हम एक्स्ट्रा ये बता दे रहे हैं. तो E बराबर हो जाएगा K, where K is bulk modulus of elasticity. कैसे होगा, वो तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालेंगे तो उसमें उसको पढ़ना है. और यही जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू ए सॉलिड, तो उस समय अगर मीडियम सॉलिड है, और मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड वेव के प्रोपेगेशन के लिए, तो उस समय E बराबर हो जाएगा Y, वह कैपिटल Y, where what is Y? Y is Young's modulus of elasticity. ये चलते चलते इससे रिलेटेड था, इसलिए हमने बताया. अगर क्वेश्चन आए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव when it travels through a fluid आवे, या when it travels through a medium आवे, या when it travels through a air और गैस आवे, तो उसका आंसर जहां से हम स्टार्ट किया वहां से यहां तक लिखना है. एंड इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन ए मीडियम, and which depends upon the elasticity and density of the medium. This is all about our today's class. Thank you very much.